so strong tonight. हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल. आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. सो लास्ट क्लास में हमने थायराइड ग्लैंड पर छोड़ा था, तो हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड से आगे का, विच इज़ एड्रीनल ग्लैंड. एंड ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद चैप्टर ख़त्म. सो लेट्स कंटिन्यू. लास्ट वीडियो में हमने सबसे पहले हाइपोथैलेमस डिस्कस किया था. हाइपोथैलेमस का हमने कॉमन नाम पढ़ा था, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. देन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कैसे कनेक्ट थे. हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी इन्फंडिबुलम से कनेक्ट थे, जो कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर था. अगर मैंने एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कैसे कनेक्ट है, सो आप आंसर करोगे इन्फंडिबुलम से कनेक्ट है. बट अगर मैं पिट्यूटरी का कोई एक स्पेसिफिक पार्ट पूछूं, जैसे कि अडीनो हाइपोफाइसिस कैसे कनेक्ट है हाइपोथैलेमस से, तो आप कहोगे हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन. और न्यूरो हाइपोफाइसिस कैसे कनेक्ट है हाइपोथैलेमस से, तो आप कहोगे हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल नर्व ट्रैक्ट. So adenohypophysis is known as anterior pituitary gland, and the pituitary gland is known as hypophysis, commonly known as hypophysis or master gland. So हमने पढ़ा था कि hypothalamus has neurosecretory cells, the neurons which are capable of secreting the hormones. So there are three type of nucleus found in the hypothalamus. There is tuberal nuclei, which secretes its hormone to the adenohypophysis. Then the two other nuclei in the hypothalamus is paraventricular nuclei and the supraoptic nuclei. So paraventricular nuclei secretes oxytocin, and the other supraoptic nuclei secretes ADH or vasopressin. ADH acts upon the distal part of the nephron, that is collecting duct, and the DCT to reabsorb water, thus makes urine more concentrated. So deficiency of ADH leads to the diabetes insipidus. Then the hormones of the tuberal nuclei which are secreted into adenohypophysis are then growth hormone releasing hormone, that is somatokinin, growth hormone inhibiting hormone, that is somatostatin, then GnRH or GnIH, these are GnRH or GnIH, then melanocytes stimulating hormone, then MIH, melanocyte inhibiting hormone. These are four hormones. And other one is corticotropin releasing hormone, CRH, then TSH, RH, TRH, then PRL, RH, PRL, IH. These are the some hormones secreted by the tuberal nuclei to the adenohypophysis. So there are the target cell in that adenohypophysis upon which these hormones act, and then the hormones are released by the adenohypophysis to the body. So if I say thyroid hormone releases a hormone called as thyroid hormone. So for your information, in the first video I have already discussed thyroid hormone is the first hormone discovered by the endocrine gland by a scientist named, this was not important, but the name of the scientist is Kendall. So let's coming back to this. So थायराइड हार्मोन की अगर हम बात करें, तो थायराइड हार्मोन की हम जर्नी कैसे करें कि थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड से कैसे रिलीज़ हुआ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि क्या जर्नी हुई. सो पहले ही हमने हाइपोथैलेमस के ट्यूबरल न्यूक्लियाई से एक हार्मोन आएगा जिसका नाम होगा TSH या फिर TSH RH या फिर TRH. TSH RH की फुल फॉर्म क्या होती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, या फिर TRH जिसको बोला जाता है. TSH RH या फिर आप TRH कुछ भी बोल लो, बात एक ही है. सो TRH की फुल फॉर्म क्या है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये ट्यूबरल न्यूक्लियाई रिलीज़ करता है. किसको रिलीज़ करेगा, एडिनोहाइपोफाइसिस के कुछ टारगेट सेल पे जाके ये एक्ट करता है. सो कौन से टारगेट सेल्स होते हैं, थायरोट्रॉप्स आर द टारगेट सेल इन द एडिनोहाइपोफाइसिस. सो देन एडिनोहाइपोफाइसिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड is known as adenohypophysis. So thyrotrops क्या रिलीज़ करेंगे, TSH, that is thyroid stimulating hormone are released by thyrotrops. So thyroid stimulating hormone acts upon the thyroid gland, which is present between the fifth cervical and first thoracic vertebrae. Thyroid gland are present between fifth cervical and the first thoracic vertebrae. बटरफ्लाई और H-shaped gland is thyroid gland. then वो TSH हार्मोन थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करेगा. थायराइड ग्लैंड को अगर हम ट्रांस TS काटें उसका, तो अगर हम जैसे TS मैंने आपको बताया था, अगर आप ये पेन लो, उसको आप ऐसे ऊपर से काटो तो ये TS बोला जाता है, ट्रांसफर सेक्शन. और आप ऊपर से देखो,
जैसे अगर आप किसी भी चीज़ को, अगर आप ये कैप, ये एक पेन है, इसको मैं ऐसे काटता हूँ हॉरिजॉन्टली और फिर मैं इसको ऊपर से ऐसे देख रहा हूँ, सो इट इज़ इसको हम बोलते हैं, हम इसका TS देख रहे हैं, दैट इज़ ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं हम उसका। सो तब हमें दिखता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन प्रेजेंट इन द थायराइड ग्लैंड, known as parafollicular cells or C cells or follicular cells. So follicular, there are herring body sac-like structure in the thyroid gland. So apart from this, follicular cell पे follicular cell पर TSH जाके एक्ट करता है और दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट कर रहा है थायराइड हार्मोन को। थायराइड हार्मोन के किस पार्ट को स्टिमुलेट कर रहा है वो? सो स्टिमुलेटिंग द पार्ट फॉलिकुलर सेल्स। सो वहाँ से फिर थायराइड हार्मोन रिलीज होता है। सो दिस इज़ द जर्नी ऑफ द थायराइड हार्मोन। सो आपको जर्नी समझ आई होगी। सो ये जर्नी थी किसकी? थायराइड हार्मोन की। सो एक चीज़ और, जैसे TSH जब किस पे एक्ट करेगा? थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करेगा। सो थायराइड ग्लैंड को जब हम TS देखते हैं तो फॉलिकुलर सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल्स का दूसरा नाम होता है C सेल्स। सो फॉलिकुलर सेल्स एक इंटरफॉलिकुलर स्पेस बनाते हैं, सो फॉर्म्स interfollicular space in which and the follicular cells also release the T3 and T4. T3 stands for triiodothyronine, which is released in the amount 30 to 35%, and T4 are really known as tetraiodothyronine or thyroxine. So T3 is more potent but secreted in the less quantity as compared to T4, which is secreted in 60 to 65%. So फॉलिकुलर सेल्स T3 एंड T4 रिलीज़ करते हैं। सो एक चीज़ और कि मैंने आपको बताया था कि थायराइड ग्लैंड एक ऐसा, एक लौता एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि अपनी सिक्रीशन खुद स्टोर कर सकता है। कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी सिक्रीशन स्टोर नहीं कर सकता एक्सेप्ट थायराइड ग्लैंड। सो और एक चीज़ और, एक और हार्मोन थायराइड ग्लैंड रिलीज़ करता है व्हेन देयर इज़ इंक्रीज इन when there is increase in calcium ion concentration or body fluid, or when there is decrease. So I'm giving you a statement. So thyroid gland, we know, releases T3 and T4, as well as it releases thyrocalcitonin TCT, which is antagonistic to parath hormone or collapse hormone or PTH. So the question is, when does the TCT, that is thyrocalcitonin, come in action? सो कब आएगा, जब क्या नीड होगी बॉडी को, जब TCT थायराइड ग्लैंड रिलीज़ करेगा? सो व्हेन देयर इज़ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द Ca2+ आयन इन द बॉडी फ्लूइड। सो PTH क्या करता था? डीमिनरलाइजेशन करता था, बोन की डिसोल्यूशन करता था जिससे कैल्शियम आयन निकले, और क्या करता था? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम आयन फ्रॉम द DCT एंड और एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। देखो मैंने आपको एक गलत चीज़ बताई, मैंने आपको कन्फ्यूज़ करा। आप बताओ, रीएब्जॉर्प्शन GIT से होता है कि एब्जॉर्प्शन GIT से होता है? एब्जॉर्प्शन फ्रॉम GIT एंड रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द DCT एंड CD, कलेक्टिंग डक्ट एंड DCT से रीएब्जॉर्प्शन होगा एंड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम GIT से। ये तो PTH करता था कैल्शियम आयन की। सो व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द कैल्शियम आयन, सो TCT कम्स इन द एक्शन एंड स्टॉप्स द एंड वर्क्स एंटागोनिस्टिक टू PTH, अपोजिट काम करेगा। एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट काम करने वाला। सो इट स्टॉप्स द डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, इट स्टॉप्स द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम GIT और GIT या फिर स्टमक, GIT या फिर DCT। रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से स्टॉप होगी? DCT से, और एब्जॉर्प्शन कहाँ से स्टॉप होगी? GIT से। सो दिस इज द होल जर्नी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। सो functions of the T3 and T4, it increases the BMR of the body. The most important point of T3 and T4, it is related to the calorigenic effect. So first point is it increases the BMR of the body. Second point, it maintains the body temperature. It maintains the body temperature of the body. It maintains the body temperature of the body. It increases the RBC production. It helps in the lipolysis, that is fat breakdown, and these are the 4 points which are major points of T3 and T4.
So apart from this, there are some disorder related to the T3 and T4, that is thyroid hormone. So the major disorder was exophthalmic goiter. It was hyperthyroidism. When the T3 or T4 are released more than required, it is an autoimmune disorder, exophthalmic goiter. So in which the body and antibody mimic the action of the TSH, thus stimulating the thyroid hormone to release more amount of thyroid hormone. So and there is hyposecretion of the T3 and T4 also, so which is all we know. Then the if there are deficiency of the iodine, then known as simply goiter, then cretinism, then myxoedema, that is adults cretinism or Gull's disease. So यहाँ पर आपको वर्ड ना पता हो, मिक्स एडिमा बोल लो, आप अडल्ट क्रेटिनिज्म बोल लो, या फिर आप गुल्स डिजीज़ बोल लो, तीनों एक ही पॉइंट है. ये कुछ डिसऑर्डर थे थायराइड हार्मोन से लेके. सो ये मोटा मोटा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो कि मैंने आपको 6-7 मिनट में आपको कवर करा दिया, थोड़ा रिवाइंड करा दिया. सो ठीक है, दो पॉइंट और जो हम भूल रहे थे, फंक्शंस ऑफ द T3 एंड T4, इट हेल्प्स इन द मेटामॉर्फोसिस. और एक और पॉइंट था, इट हेल्प्स इन द कार्बोहाइड्रेट्स कार्ब्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी. सो एक और पॉइंट, T3 and T4 when they are stored in the thyroid gland, they forms a complex with the thyroglobulin, and when they are released in the blood, they form a complex with the albumin. So all these are done. So coming back to this, this is the last video of this chapter. So let's start this new video. 6-7 मिनट हमने पिछला याद करा, जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे सो उतना हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा. सो एड्रिनल ग्लैंड से हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो. सो ऑरिजिन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड इज़ डुअल ऑरिजिन. ये आपको इम्पॉर्टेंट है. डुअल ऑरिजिन, एक और जगह का डुअल ऑरिजिन था. यस, हाइपोथैलेमस का या फिर पिट्यूटरी का, बताओ. हाइपोथैलेमस का डुअल ऑरिजिन था या फिर पिट्यूटरी का? सो आंसर है पिट्यूटरी का डुअल ऑरिजिन था. सो पिट्यूटरी का डुअल ऑरिजिन, पिट्यूटरी. अगर इसका अडीनो हाइपोफाइसिस देखा जाए तो अडीनो हाइपोफाइसिस था बेटा एंडोडर्म का, और न्यूरो हाइपोफाइसिस था आपका एक्टोडर्म का. ठीक है. सो एड्रिनल ग्लैंड है, उसका भी ऑरिजिन डुअल ऑरिजिन है. सो एड्रिनल ग्लैंड भी दो तरह में डिफरेंशिएट है, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स में और एक एड्रिनल मेड्यूला में डिफरेंशिएटेड है. सो एड्रिनल कॉर्टेक्स इज़ मीजोडर्म और एड्रिनल मेड्यूला इज़ एक्टोडर्म. मेड्यूला इज़ अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन. आप ऐसा याद करो, जब भी कोई ब्रेन से रिलेटेड बात आ जाए, तो आप उसका ऑरिजिन मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ एक्टोडर्म. सो एड्रिनल यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं कि मेड्यूला इज़ इनर but the origin is ectoderm. So this is very important point which can confuse you in the future. Adrenal medulla is ectoderm, adrenal cortex is mesoderm. There is no endodermal origin, unlike thyroid gland and unlike thymus gland, both have endodermal origin. So location present on the anterior side of the kidney, hence called as renal cap. So kidney is known as renal. So kidney cap or renal cap. So if I draw a diagram of a kidney, a cartoon diagram of a kidney, wait a minute. So this is just a kidney bean shape. Kidney is like a kidney bean shape की kidney होती है. सो इसका एंटीरियर साइड क्या हुआ, आगे की साइड, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड. सो दिस इज़ योर 1 minute, आई जस्ट एडजस्ट माई कीबोर्ड टू मेक अ कलरफुल कार्टून डायग्राम. सो येस, सो दिस इज़ योर एड्रिनल ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट एट द anterior side of the kidney. So this is your kidney, and this is your adrenal gland. Location present upon the anterior side of the kidney, hence called as renal cap or kidney cap. So एक कैप की तरह प्रेजेंट है, जैसे ये किडनी हो गई आपकी. सो दिस इज़ योर किडनी, एंड इसके ऊपर की ये जो कैप है,
इसकी जो कैप है ये, जिसको मैं अब रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, सो दिस इज़ योर एड्रिनल ग्लैंड. सो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला. आप प्लीज़ इसके ऑरिजिन याद रखना, ऑरिजिन आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो एड्रिनल मेड्यूला, most of the time medulla is endodermal, but adrenal medulla is ectodermal. So star mark this, adrenal medulla is ectodermal and adrenal cortex is mesodermal. There is no endodermal in adrenal gland. So location done. Structure, triangular shaped structure, triangular shaped gland. So divided into the three layers. So sorry, divided into the two zones and three layers. So two zones. So adrenal gland, adrenal gland is a triangular shaped gland and it is divided into the outer adrenal cortex and inner adrenal medulla. Outer adrenal cortex and inner एड्रिनल मेड्यूला, जो कि हमने डिस्कस कर लिया. ये जो आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये क्या है, मीजोडर्मल, और जो इनर एड्रिनल मेड्यूला है ये क्या है, एक्टोडर्मल. ठीक है. अब जो आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स है, जो हमने ये था, जैसे ये था एड्रिनल इसको आप लिख लो ब्रैकेट में, ये है आउटर, आउटर और ये है इनर. ठीक है. सो ये जो आउटर है, आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है मीजोडर्मल, ये 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट है, 3 लेयर्स. इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू द 3 लेयर्स. सो आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स दैट इज further differentiated into the 3 layers, zona glomerulosa, zona fasciculata and zona reticularis. So adrenal gland releases the mineralocorticoids, glucocorticoids and sex corticoids. So zona glomerulosa that is outer का जो outer part है उसका सबसे जो outer, जैसे आप ये एक चीज़ मान लो, ये आप एड्रेनल कॉर्टेक्स मान लो, इसकी सबसे जो आउटर लेयर है इसकी भी एक आउटर लेयर होगी ना. सो वो है जोना ग्लोमेरुलोसा. आगे डायग्राम में आपको और अच्छी तरह समझा दूंगा मैं, और आपको क्लैरिफाई हो जाएगा. ये अगर आप कार्टून डायग्राम नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे कोई बात नहीं, अब आगे समझने में काफ़ी आसानी होगी. सो जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रीट्स द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. ठीक है. सो लाइक एल्डोस्टेरॉन. देन जोना फेस्टिकुलेटा secretes the glucocorticoids, that is cortisol and cortisone, and zona reticularis secretes the sex corticoid or DHEA, and zona medulla secretes the some hormones which we will study further in this video. So that's the first page. एक बार हम दोबारा ले लेते हैं इस पेज को. एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड का ऑरिजिन क्या है, ऑरिजिन आप डुअल ऑरिजिन है. अब आप कहोगे कि पिट्यूटरी की तरह, पिट्यूटरी का एडिनो हाइपोफाइसिस का एंडोडर्मल ऑरिजिन था, न्यूरो हाइपोफाइसिस का एक्टोडर्मल ऑरिजिन था. तो सो एड्रिनल ग्लैंड का डुअल ऑरिजिन है. एड्रिनल कॉर्टेक्स इज mesodermal while adrenal medulla is ectodermal. So adrenal cortex is further divided into the 3 layers which is known as zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis. So zona glomerulosa secretes the mineralocorticoids like aldosterone. Zona fasciculata secretes then glucocorticoids, cortisol and cortisone, and zona reticularis secretes the sex corticoids DHEA, while the inner layer, that is adrenal medulla is inner which is ectodermal. सो हम इसके फंक्शंस आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, सॉरी आगे की पेज में हम पढ़ेंगे. सो कार्टून डायग्राम, सॉरी आप एक प्रॉपर डायग्राम आपको नेक्स्ट पेज में मैं आपको कवर कर देता हूँ. ये पेज 1 इज़ कम्प्लीटली डन. एंड वन मोर थिंग, द लोकेशन, इट इज़ प्रेजेंट इन द इंटीरियर साइड ऑफ द किडनी. किडनी के आगे वाली साइड पर ये प्रेजेंट है, और इंटीरियर साइड ऑफ द किडनी, और सो इट इज़ नॉन एज किडनी कैप और रीनल कैप. सो इट इज़ द फर्स्ट page is done. Moving forward towards the next page.
सो जो 3 लेयर्स हमने एड्रेनल कॉर्टेक्स की हमने जो पढ़ी थी, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलरिस एंड जोना रेटिकुलरिस, सो उनकी ऑर्डर ऑफ थिकनिंग आप हमेशा याद रखना, जो मिडल लेयर होती है वो हमेशा मोटी होती है और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो सबसे पतली होती है। सो मिडल लेयर कौन सी थी? मिडल लेयर थी जोना फेसिक्युलाटा इज़ द इनर मिडल लेयर विच इज़ ऑलवेज, ये एक रूल है कि मिडल लेयर मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलवेज नहीं कहूँगा, मोस्ट ऑफ द टाइम वो थिक होती है, बिकॉज दे प्रोवाइड अ कुशन एंड ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग द इंजुरी. So fasciculata, then glomerulasa actually, then there is last is reticularis. So it is the middle one. Zona glomerulosa is outer and reticularis is inner. So this is the order of thickening. So ये आपका एड्रेनल ग्लैंड है, ये आपका एड्रेनल ग्लैंड है, जो एक डायग्राम मैंने आपको बताया था कि आगे हम डिस्कस करेंगे एड्रेनल ग्लैंड. सो एड्रेनल ग्लैंड की जो देखो ट्रायंगल शेप ग्लैंड है, ये देखो आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है. सो दिस इज़ द एड्रेनल ग्लैंड, द आउटर लेयर ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड विच आई एम शेडिंग विद द रेड पेन. this is the outer layer which is shaded by red pen is zona glomerulosa, which secretes the aldosterone. So it is then the middle layer which is the thickest layer. This is the thickest layer which is this is the thickest layer, zona fasciculata. This is the thickest layer which is zona fasciculata. ये देखो zona fasciculata is the middle layer, ये रही, which secretes the glucocorticoids known as cortisol and cortisone. अगर आपको ये नहीं विजिबल है ढंग से तो आप लिख लो cortisol and cortisone, ठीक है. So this and the inner layer which is I am drawing with the green one, this is the middle inner layer of the adrenal cortex, the outer part of the adrenal gland. Yes, so green is zona reticularis which secrete the sex corticoids DHEA, and the inner one which I am drawing with the gray, this is the adrenal medulla. This is the adrenal medulla. ये देखो ये रहा adrenal medulla. So which secretes the catecholamines or the emergency hormones adrenaline and noradrenaline. So adrenaline को epinephrine बोलते हैं और noradrenaline को norepinephrine बोलते हैं. So adrenal medulla secretes the catecholamines which are emergency hormones. So एक बार हम दोबारा ले लेते हैं. एड्रेनल ग्लैंड एंटीरियर साइड ऑफ द किडनी पे प्रेजेंट है. अब हम सिर्फ एड्रेनल ग्लैंड को ले रहे हैं. एड्रेनल ग्लैंड की आउटर एड्रेनल ग्लैंड को हम बोलते हैं, आउटर एड्रेनल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? एड्रेनल कॉर्टेक्स. इनर एड्रेनल ग्लैंड को हम बोलते हैं एड्रेनल मेड्यूला. सो एड्रेनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर डिफरेंशिएट होती हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा एंड जोना रेटिकुलरिस. सो ग्लोमेरुलोसा secrete द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. जो आउटर लेयर है वो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स रिलीज़ कर रही है. एल्डोस्टेरॉन जो मिडल लेयर है, जो थिकेस्ट है, जोना फेसिकुलाटा, वो क्या सिक्रीट कर रही है? वो सिक्रीट कर रही है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कि है कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन. और जो इनर लेयर है जोना रेटिकुलरिस, वो क्या सिक्रीट कर रही है? वो सेक्स कॉर्टिकॉइड सिक्रीट कर रही है जो है DHEA. और जो इनर एड्रेनल ग्लैंड का जो पार्ट है उसको बोलते हैं इनर एड्रेनल मेड्यूला. वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं? वो कैटेकोलामाइन सिक्रीट कर रहे हैं, एमरजेंसी हार्मोन्स. So example of the emergency hormones are adrenaline and noradrenaline. देखो एड्रेनल से एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन मिल रहा है. So adrenaline and noradrenaline are secreted by the adrenal medulla or the inner part of the adrenal gland. So this is the हो गया. अब एड्रेनल मेड्यूला के जो हार्मोन्स, एड्रेनल मेड्यूला है वो सिक्रीट करता है emergency hormones.
So it secretes the emergency hormones, secretes emergency hormones known as catecholamines, adrenaline and noradrenaline. ये डन. सो कॉर्टिकॉइड्स कौन से होते हैं? ग्लूको, हमने पढ़े ग्लूको, देन हमने पढ़े मिनरैलो, पढ़े ना मिनरैलो, और हमने पढ़े सेक्स. ये 3 टाइप के कॉर्टिकॉइड्स थे. ग्लूको का एग्जांपल कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, मिनरैलो का एल्डोस्टेरॉन, एंड सेक्स का DHEA, डाईहाइड्रोएपी एंड्रोस्टेरॉन. ठीक है. सो कॉर्टिकॉइड्स हमने पढ़ा था कि एक पिट्यूटरी का हार्मोन था. बताओ कौन सा? ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, और कॉर्टिकोट्रोपिन. सो इसको आप कॉर्टिकोट्रोपिन, ACTH को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टिकोट्रोपिन. सो कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, आउटर एड्रिनल ग्लैंड को एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं. सो एड्रिनल कॉर्टेक्स आर सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज ACTH, are secreted under the influence of pituitary hormone ACTH, that which is also known as corticotropin. एड्रेनल मेड्यूला के जो हार्मोन है वो किसी के इन्फ्लुएंस में सिक्रीट नहीं होते, वो सिर्फ एमरजेंसी कंडीशन में रिलीज होते हैं. सो एड्रेनल मेड्यूला हार्मोन सिक्रीशन इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी हार्मोन, बाय एनी पिट्यूटरी हार्मोन. सो ओनली इन एमरजेंसी कंडीशन, ठीक है. सो हमने ये भी डन कर लिया. कुछ था नहीं इसमें, ये डायग्राम था जो कि सिर्फ समझने के लिए था. आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है? आपको ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है. आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद करनी है, और एक ये याद करनी है. एड्रेनल मेड्यूला के जो अंदर वाला पार्ट है, एड्रेनल मेड्यूला इज़ कौन से ओरिजिन का है? वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, और उसके जो सिक्रीशन है वो किसी भी पिट्यूटरी हार्मोन से, सॉरी, तो एड्रेनल मेड्यूला के जो हार्मोन है वो किसी भी पिट्यूटरी हार्मोन के इन्फ्लुएंस में सिक्रीट नहीं होता. सो विद दिस वी हैव डन विद द पेज 2. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू पेज 3. सो पेज 3 हम पढ़ लेते हैं अब. सो अब हम पढ़ रहे हैं कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बाय जोना, यस, ग्लोमेरुलासा. ये कौन सी थी? आउटर लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, आउटर लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. सो क्या करता है? देखो, एल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एक पार्ट है. सो अब हम पढ़ लेते हैं कि एल्डोस्टेरॉन का क्या फंक्शन होता है. सो एल्डोस्टेरॉन हमने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, एल्डोस्टेरॉन का क्या फंक्शन आता है, तो हम यहाँ पर भी एक उसका रिव्यू ले लेते हैं. सो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करता है और पोटेशियम की सिक्रीशन करता है. सो ये डायस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन पर एक्ट करता है. डायस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन मेनली DCT और कलेक्टिंग डक्ट. सो कलेक्टिंग डक्ट और DCT पे ये एक्ट करेगा और रीएब्जॉर्ब कराएगा. देखो, कंफ्यूज आपको एग्जामिनर कहाँ पर करेगा? वो कहेगा कि एब्जॉर्प्शन नहीं, रीएब्जॉर्ब. नेफ्रॉन में रीएब्जॉर्प्शन होती है. सो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम आयन एंड वाटर एंड द सिक्रीशन ऑफ द पोटेशियम इन ब्लड. सो रीएब्जॉर्प्शन क्या कराएगा? ऑफ सोडियम और वाटर की, और सिक्रीशन कराएगा पोटेशियम की. और ये किस पे एक्ट करता है? ये डायस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन पर एक्ट करता है, जो कि है DCT, दैट इज DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड कलेक्टिंग डक्ट. और ये क्या कराता है? रीएब्जॉर्प्शन कराता है. किस चीज़ की? बताओ. सोडियम की और वाटर की. और सिक्रीशन कराता है पोटेशियम की. और ये मिनरल होम्योस्टेसिस को होम्योस्टेसिस कराता है. अब आप कहोगे कि होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस होता है किसी भी चीज़ का मेंटेन करना, किसी भी चीज़ को मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाता है. सो जैसे हमने पढ़ा था ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने. अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस कौन कराता है? इंसुलिन कराता है, ग्लूकागॉन कराता है, या फिर दोनों करता है? सो आंसर आएगा इंसुलिन
करता है, ग्लूकागॉन करते हैं, दोनों करते हैं ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस। सो आंसर क्या हुआ, ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस दोनों करते हैं, दोनों मिल बांट कर इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों कलेक्टिव एक्शन से उसका क्या होता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं ग्लूकोज का लेवल। सो अगर ग्लूकोज लोअर मतलब ग्लूकोज को कम करना हो तो इंसुलिन करेगा, ग्लूकोज को बढ़ाना हो तो ग्लूकागॉन करेगा, बट ग्लूकोज को मेंटेन करके रखना हो, मेंटेनिंग इज़ नॉट लोअरिंग, अगर कभी कम है तो उसको बढ़ाना है, कभी ज़्यादा है तो उसको कम करना है, तो ये मेंटेन करना ना, तो दोनों कलेक्टिव एक्शन से हम उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। सो इसी प्रकार एल्डोस्टेरॉन मिनरल का क्या कराता है, होम्योस्टेसिस। कभी अगर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम है तो ये रीएब्जॉर्प्शन कराएगा, ठीक है, कभी पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये सिक्रीशन कराएगा नेफ्रॉन में, ठीक है। सो यही पॉइंट लिखे हुए हैं, हेल्प्स टू मेंटेन द मिनरल होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस बेटा अगर आपको नहीं पता तो इसको आप लिख लो बैलेंसिंग, बैलेंसिंग को कहते हैं हम होम्योस्टेसिस। देखो सोडियम और पोटेशियम आयन को बैलेंस कराता है, तो अगर सोडियम कम है तो ये रीएब्जॉर्ब कराएगा ताकि बढ़े, ठीक है, सोडियम कम होगा तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, सो उसको रीएब्जॉर्ब कराएगा, और आपका पोटेशियम हाई है तो उसको सिक्रीट करेगा। सो आपको पहला पॉइंट डन है, हेल्प्स टू मेंटेन द मिनरल homeostasis, that is sodium potassium balance. Then it stimulates the diastole part of the nephron, जो कि हुआ DCT and collecting duct. It reabsorbs sodium and water। देखो इसमें आपको कंफ्यूज करा था, इट रीएब्जॉर्ब सोडियम गलत, इट रीएब्जॉर्ब वाटर गलत, इट रीएब्जॉर्ब सोडियम एंड वाटर कलेक्टिव एंड सिक्रीट पोटेशियम। सिक्रीट मतलब नेफ्रॉन को पोटेशियम देता है, बिकॉज पोटेशियम इज़ नॉट गुड फॉर अस। सो एक बार क्या हुआ था कि मैं जब अपने कोचिंग में था, सो मेरे टीचर ने कहा था कि अगर आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको एहसास होता है कि आप डॉक्टरी आप स्टडी कर रहे हो तो आप डॉक्टर जैसा बिहेव करने लग जाते हो कि हम ये सब कुछ ह्यूमन के लिए ही तो ह्यूमन के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी इज़ द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो आप पढ़ रहे हो बट आप डॉक्टर हो नहीं। सो एक उनके नेबर में था, मेरे टीचर के नेबर में एक लड़का रहता था। सो वही मतलब मैं भी अभी डॉक्टर हूँ नहीं, बट मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार आप अपने आप को डॉक्टर मत मानो अगर आप ये सब चीज़ें पढ़ रहे हो, विच इज़ गुड, अगर आपको नॉलेज है तो गुड, बट डॉक्टर आपसे ज़्यादा जानता है। और गलती क्या करी थी, ये सिक्रीशन ऑफ द पोटेशियम से मुझे याद आया। सो मेरे टीचर के नेबर, जो मुझे टीचर पढ़ाते थे, उनके नेबर में एक लड़का रहता था जिनके नाना जी को मैटरनल क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, नाना जी को कार्डियक अरेस्ट आया। सो उसने गलती करी, उसने उनको कोकोनट वाटर ला के दे दिया। सो उनको लगा कोकोनट वाटर इज़ हेल्दी, इज़ वेरी गुड फॉर अस, बट कोकोनट वाटर इज़ हाई इन पोटेशियम, so which can prove fatal during cardiac arrest, during the cardiac arrest. Potassium, high potassium concentration is fatal during cardiac arrest. So ये गलती कर दी थी उनके नेबर में। I don't know what happened the next, but anyway, so coming back to this, it reabsorbs sodium and water and secrete potassium, thus it increases the sodium concentration in blood and decreases the potassium concentration in the blood. ये 3 पॉइंट अगर आपको डन है तो हम नेक्स्ट करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के एग्जांपल है कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन। सो ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं, लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। So like insulin and glucagon, they maintain the glucose homeostasis. So ये क्या करते हैं, देखो मैंने आपको बताया था LPG that is lipids, proteins and G4 glycogen। और अगर पीछे लेसेस लग जाए, LASES या फिर लाइसेस लग जाए, ठीक है,
सो आप किसको करोगे, आप कंसिडर किसको करोगे आप? तो आप ग्लूकागॉन को कंसिडर करोगे ना। और अगर जेनेसिस लग जाए, जेनेसिस, तो आप इंसुलिन को कंसिडर करोगे, बिकॉज इंसुलिन इज द एनाबॉलिक हार्मोन वाइल द ग्लूकागॉन इज द कैटाबॉलिक हार्मोन। ठीक है, सो इस पे देखो आप, लेसेस लेसेस लेसेस, एक पॉइंट और, ग्लूकागॉन में मैंने आपको बताया था ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो आपको कंफ्यूज करा था मैंने, ऐसे लिखा था ग्लाइकोनियोजेनेसिस और एक लिखा था मैंने ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये और एक ये गलत है, ग्लाइको नहीं था, ग्लूको था, ग्लूको ये लिखा था, ग्लाइको गलत है। सो इट इंक्रीजेज द ग्लूकोज कंसेंट्रेशन इन ब्लड बाय, देखो ग्लाइकोजन लेसिस, ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होगा। लिपोलेसिस फैट का ब्रेक डाउन कराता है। प्रोटियोलेसिस प्रोटीन का ब्रेक डाउन कराता है विच रिजल्ट्स इन द अमीनो एसिड्स। एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम बताओ ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या था? फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड्स एंड फैट्स। सो आप यहाँ लिख लो ग्लूकोनियोजेनेसिस, देखो GLUCONEOGENESIS, it is gluconeogenesis, formation of glucose from amino acids and fats। ये आप important mark करो। इट इंक्रीजेज द आरबीसी प्रोडक्शन और इट डिक्रीज द डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन। देखो जब भी आपकी बॉडी में ना कोई इन्फ्लामेशन होती है, सूजन आती है या फिर पेन होता है, सो हमारी बॉडी में ना डब्ल्यूबीसी के काउंट बढ़ जाता है। नॉर्मली डब्ल्यूबीसी का काउंट 6000 to 8000 होता है। सो इन द केस ऑफ इन्फ्लामेशन इट राइजेज अबव द 6000 से 8000 का जो मार्क होता है उससे अबव डब्ल्यूबीसी का काउंट हो जाता है, डब्ल्यूबीसी का इन्फ्लामेशन के केस में। सो ये क्या कह रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को कम करते हैं, मतलब डब्ल्यूबीसी के काउंट को कम करते हैं। सो क्यों ना हम इसको ऐसी कंडीशन में दिया जाए जब डब्ल्यूबीसी का काउंट ज़्यादा हो, जैसे कि अगर इन्फ्लामेशन हो, इन्फ्लामेशन में डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डब्ल्यूबीसी का काउंट कम कर देते हैं। अगर ज़्यादा डब्ल्यूबीसी का काउंट रहे या ज़्यादा आरबीसी का काउंट रहे, बोथ आर नॉट गुड फॉर अस, बट अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट ज़्यादा है, सो अगर उसको कम करना है तो हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे सकते हैं। सो एक स्टेटमेंट है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर यूज्ड इन एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव बिकॉज इट डिक्रीजेज द डब्ल्यूबीसी काउंट। जैसे किसी की सर्जरी होती है कभी भी, सो सर्जरी जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की सर्जरी होती है, सो इम्यूनो क्या बोल रहा था मैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सर्जरी होती है जैसे, तो उसमें क्या होता है आफ्टर द सर्जरी कि देयर आर हाई चांस ऑफ द रिजेक्शन, कि मतलब बॉडी अपनाती नहीं है कि ये मेरा ऑर्गन नहीं है, उसको पता ना चल जाए। पता कैसे चलेगा? जब डब्ल्यूबीसी द पुलिसमैन्स ऑफ द आवर बॉडी वही पता करेंगे ना कि ये हमारा ऑर्गन नहीं है, तो क्यों ना हम उनको कम कर दे, उनको कम कर दो, कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन को। सो वही लिखा है कि जो कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन को कम नहीं, डब्ल्यूबीसी को कम कर दो। हम कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन दे देते हैं जो डब्ल्यूबीसी को कम कर देगा। सो लिखा है कि कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन आर यूज्ड इन एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनोसप्रेसेंट्स, इम्यूनोसप्रेसेंट जो इम्यूनिटी को डाउन करता है। एक और एजेंट है जो इम्यूनिटी को डाउन करता है, अगर आपको नहीं पता तो आप लिख लो साइक्लोस्पोरिन, आप लिख सकते हो साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन is also an immunosuppressive agent, immunosuppressive agent, ठीक है। So maintains the glucose homeostasis,
लेसेस कराएगा, एलपीजी लेसेस, लिपोलेसिस, glycogen proteolysis and gluconeogenesis, formation of the glucose from amino acids and fats. Then it increases the RBC production. T3 और T4 भी RBC प्रोडक्शन एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करते हैं. इट डिक्रीजेस द WBC प्रोडक्शन. कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोल आर यूज्ड इन द एंटी इन्फ्लामेटरी, इम्यूनोसप्रेसिव, एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनोसप्रेसेंट्स बिकॉज इट डिक्रीजेस द WBC काउंट. क्योंकि जब भी इन्फ्लामेशन होती है तो WBC का काउंट ज़्यादा हो जाता है. सो अगर उसको कम करने के लिए तो हम बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी. सो वो कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन काम आ सकते हैं. सो अगर हम पढ़ रहे हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बाय जोना रेटिकुलारिस, that is the innermost of outer adrenal gland. ठीक है. secreted in primarily large quantity is male. ये आप थोड़ा अगर आप याद करो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेल में ज़्यादा सिक्रीट होता है सेक्स कॉर्टिकॉइड DHEA, दैट इज़ डाईहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन. ठीक है. सो तीनों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, तीनों किसकी कंट्रोल में होते हैं? ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन और कॉर्टिकोट्रोपिन. इसकी पिट्यूटरी हार्मोन है ना, जिसकी इन्फ्लुएंस में सिक्रीट होते हैं. सो सिक्रेट इन द लार्ज क्वांटिटी इज द मेल एंड सिक्रेट इन द स्मॉल क्वांटिटी इन द फीमेल. फंक्शन क्या होता है DHEA का फंक्शन क्या होता है? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है, जैसे ग्रोथ ऑफ द मुस्टैचेस, then beard, then broadening of the shoulders, then growth of the axillary and pubic hair. So it helps in the maintaining the secondary sexual character in the males, growth of the beard, mustaches, broadening of the shoulders, skin hair growth, axillary and pubic development. So आप इसमें सबसे ज़्यादा important क्या है? Important is this is very important, secreted in the large quantity in males. इसको आप star mark करो. So moving forward the next page, this page is done. सो जैसे कि DHEA जैसे मेल्स में क्या काम करता है? ब्रॉड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करके रखता है. सो इन द फीमेल्स इट इज़ ऑल्सो रिलीज इन द स्मॉल क्वांटिटी. आप याद रखना, स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज़ होगा, स्मॉल क्वांटिटी इन फीमेल. आपको ये ज़्यादा याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो उनमें भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करेगा, जैसे कि ग्रोथ ऑफ द. अब ऐसा तो है नहीं कि प्यूबिक हेयर सिर्फ मेल्स में आते हैं, फीमेल में भी आते हैं. एक्सिलरी हेयर फीमेल में आते हैं. सो दीज आर कॉमन बिटवीन द मेल एंड फीमेल. सो बट द ग्रोथ इज़ मच हायर इन मेल्स एज कम्पेयर टू फीमेल. टाइम ऑफ ग्रोथ, कितनी जल्दी ग्रो कर रहे हैं वो. सो बट ग्रो तो कर रहे हैं ना, ग्रोथ तो है. सो वो फीमेल में भी है. एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर की ग्रोथ DHEA कराता है. और क्या कराता है आपका, जैसे हमारे में और फीमेल में क्या डिफरेंस है, हमारे में कह रहा हूँ, मेल्स में और फीमेल्स में क्या डिफरेंस है. जो सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन होता है वो मेल्स में ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर्स कराता है और फीमेल्स में ब्रॉडनिंग ऑफ द एब्डोमेन कराता है. बिकॉज ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी आपको पता है वो रिलैक्सिन 90 डिग्री काम करता है. सो यस, सो सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन, सो ब्रॉडनिंग ऑफ द एब्डोमेन इन द फीमेल, और उसने क्या करा था? ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर्स इन मेल. And the third condition, proper fat distribution upon the body, because in female the fat content is more than male. So वही लिखा है, action in the females, secrete in the small quantity, this is important, induces the growth of the axillary and the pubic hair, helps in the broadening of the abdomen. ठीक है, as compared to males where growth of shoulders. ठीक है. सो इट हेल्प्स इन द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैट्स अपॉन द बॉडी. ये हो गया. सो कैटेकोलामाइंस, एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन. सो इसको आप एपिनेफ्रिन भी बोलते हो, एपिनेफ्रिन, इसको नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं. सो कैटेकोलामाइंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज द इमरजेंसी हार्मोन. दे आर सिक्रेटेड इन द ब्लड एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी. सो इमरजेंसी में 3F कंडीशन आती है. 3F कंडीशन इज फ्लाइट,
फ्राइट और फाइट, आप लिख देता हूँ मैं 3F कंडीशन। Condition. So 3F stands for the fight, then fright, then flight. So these are the 3F condition. So they are secreted in the blood at the emergency, at the time of the emergency, fight, flight or fright, 3F condition. So what is fright? Which is fright? FRIGHT. What is fright? हमको पता है fight और flight भी हमें पता है, तो fright क्या होता है अगर आपको नहीं पता? So it is sudden fear. Sudden fear is fright. एकदम झटका, जैसे अगर हम आप हॉरर मूवी देखो तो एकदम भूत आ जाए। कौन सा आता है वो, जब मैं बचपन में था मुझे भी किसी ने पागल बना दिया था, एक ब्लडी मैरी, हाँ, तो उसकी मूवी आप देखो, या फिर आप कहते हैं ना रात को, अगर हम अभी तो वैसे भी 3:03 हो गए सुबह के, मतलब रात की सुबह के आप जो भी बोल लो, 3:30 बज चुके हैं। सो ये भूतों वाला ही टाइम होता है। सो फ्राइट, FRIGHT, फ्राइट। सो मेरे कैमरे में भूत तो नहीं दिख रहा है ना पीछे। कमिंग बैक, सो फ्राइट इज़ अ इंटेंस फियर, सडन फियर। सो एट द टाइम ऑफ द कंडीशन, so it is releases, they are secreted in the blood at the time of the emergency, fright of the fright. Function, it increase the muscle tone, then sweating, or it increase the blood rate, और it decreases the salivation. आपका मुंह सूखने लग जाता है। जब भी आप कभी देखो, आप कभी डर रहे हो या आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो आपका जो मुंह आपका सूखने लग जाता है। सो इट डिक्रीजेज द सलाइवेशन, दस माउथ स्टार्ट्स बिकमिंग ड्राई। इट इंक्रीज द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग एंड मसल टोन। आप जब भी आपको पता ही होगा, आपका दिल तेज धड़कने लग जाता है, आपको पसीना आने लग जाता है, आपकी आवाज़ भारी हो जाती है, आपको गुस्सा आता है। सो ये फंक्शन होते हैं। सो अब हम डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से लेकर डिसऑर्डर कौन से होते हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं एडिसन डिजीज़। सो एडिसन डिजीज़ में क्या होता है? हाइपो सिक्रेशन। हाइपो मीन्स कम, हाइपो इज़ कम, ठीक है। हाइपो सिक्रेशन ऑफ द मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स एंड द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। अब देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कौन से हो गए? कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन। अब हम सिम्टम्स खुद गेस कर सकते हैं क्योंकि हमें फंक्शन तो पता है। कॉर्टिसोन आरबीसी बढ़ाते थे, डब्ल्यूबीसी कम करते थे। तो पहला क्या होगा सिम्टम कि डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगा और आरबीसी कम हो जाएगा। सो ये देखो पहला सिम्टम, फोर्थ पे जो डिक्रीज आरबीसी, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, ठीक है। कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन लिपोलेसिस करते थे। क्या करते थे? लिपोलेसिस, फैट ब्रेकडाउन हो तो आप मतलब मोटे नहीं दिखोगे ना। सो अगर कम होगा तो आप इंक्रीज इन द बॉडी फैट, सो आप मोटे दिखोगे। सो इंक्रीज मोटे होगे तो बॉडी वेट भी बढ़ेगा, इंक्रीज इन बॉडी वेट। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स मैंने अगर आपको याद है, अभी थोड़ी देर मैंने आपको बताया था, एल्डोस्टेरॉन बीपी में हेल्प करता है। एल्डोस्टेरॉन अगर कम हो तो बीपी कम होता है। सोडियम कंसंट्रेशन अगर बॉडी में कम हो तो लो बीपी होता है। सो अगर आप याद कर लो, एक्सक्रीशन में पढ़ा होगा आपने। सो लो एल्डोस्टेरॉन मीन्स लो बीपी, एक आ जाती है कंडीशन। सो लो बीपी, लो ब्लड वॉल्यूम। अगर लो सोडियम और वाटर एंड हाई पोटेशियम कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। अगर लो सोडियम और लो पोटेशियम और लो सोडियम और लो वाटर और हाई पोटेशियम हो जाए, सो ब्लड की वॉल्यूम क्यों कम होगी? इसका आप कमेंट में आंसर बताना, ठीक है। D=m/v से पता चल जाएगा आपको, या फिर अगर आपने एक्सक्रीशन पढ़ा है तो वेल एंड गुड। सो लो ब्लड वॉल्यूम, लो बीपी, हाई बॉडी वेट, मतलब बॉडी वेट बढ़ गया, डिक्रीज इन द डब्ल्यूबीसी, इंक्रीज इन द डब्ल्यूबीसी एंड डिक्रीज इन द आरबीसी।
सो विद दिस हमने चौथा पेज भी ख़त्म कर लिया. सो फिफ्थ पेज क्या कहता है? सेकंड डिसऑर्डर है आपका कुशिंग सिंड्रोम. कुशिंग सिंड्रोम में अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले कौन सा डिसऑर्डर पढ़ा है? हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सॉरी हाइपो सिक्रीशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हमने पढ़ लिया, जिसको हम क्या बोलते थे? एडिसन्स डिजीज़. एडिसन्स हमने डन कर ली. ठीक है, अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं कुशिंग सिंड्रोम. कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. अब देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते थे? आरबीसी बढ़ाते थे, डब्ल्यूबीसी कम करते थे. तो आप तो ये बता सकते हो कि अगर आरबीसी बढ़ेगा तो ब्लड गाढ़ा होता जाएगा, तो थिकनिंग हो जाएगी, और डब्ल्यूबीसी कम होगा तो इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी. इम्यूनिटी सप्रेस. और क्या करते थे? बॉडी फैट कम करते थे, मतलब पतला कर देते थे. तो अगर ज़्यादा होगा तो डिक्रीज़ इन बॉडी वेट, ये लिखा है डिक्रीज़ इन बॉडी वेट. ये हो गया, ये हो गया. ये आप एक याद रख लो. दिस इज़ द यूनिक फीचर विच कैन डिफ्रेंशिएट इट इनटू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम इट. It is a unique feature which can differentiate it from the other disorder, bronze-like pigmentation of the skin. ठीक है, अगर कभी भी आ जाए तो आपको दिमाग में आना चाहिए कुशिंग सिंड्रोम. सो अगर इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, दस इंक्रीज इन द ब्लड increased blood concentration, glucose concentration, hence increasing the blood pressure, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. देखो अगर ये बढ़ेगा तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना, ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ेगी. सो एक सेकेंड, हाँ. सो hyper secretion of the glucocorticoids, increase in the blood glucose concentration, thus increase the blood pressure, increase in the RBC, blood thickening, decrease in the WBC, immunosuppression, decrease in the body weight. और ये आपको की फीचर ब्रॉन्ज लाइक पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन. अगला है एल्डोस्टेरोनिज्म. आपको पता है एल्डोस्टेरॉन आ रहा है, तो एल्डोस्टेरॉन को हम होंगे, सो इसको बोलते हैं कॉन्स सिंड्रोम. आप ये नाम भी याद कर लेना, हाइपर सिक्रेशन ऑफ द एल्डोस्टेरॉन ओनली. तो देखो इंक्रीज हो जाएगा बीपी, इंक्रीज सोडियम कंसनट्रेशन द ब्लड, इंक्रीज बीपी, डिक्रीज इन द पोटेशियम कंसनट्रेशन द ब्लड. ये होता था भाई, वो सोडियम कंसनट्रेशन बढ़ाता था और पोटेशियम कंसनट्रेशन कम करता था. सो वही लिखा है. गाइनेकोमेस्टिया, इसको हम बोलते हैं मैन बूब्स कंडीशन, बोलते हैं मैन बूब्स कंडीशन, गाइनेकोमेस्टिया. फीमेल लाइक बॉडी, आप ऐसा याद रखना, फीमेल लाइक बॉडी. देखो क्या होता है कि अगर फीमेल जैसे करेक्टर, फीमेल की कैसे करेक्टर होते हैं? ब्रॉडनिंग ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है, और इरेगुलर फैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी. ये कंडीशन कौन प्रिवेंट करता था? DHEA प्रिवेंट करता था. तो अगर उसकी कम सिक्रीशन हो जाए, हाइपोसिक्रीशन ऑफ द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स इन मेल्स, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स इन मेल, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स इज DHEA इन मेल्स, अगर ये हो जाए तो फिर होता है गाइनेकोमेस्टिया. काफ़ी कॉमन कंडीशन है. जो जिम मारते हैं, जो मतलब जिम विम जाते हैं, जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, उससे भी हो जाती है ये. स्लो रेट ऑफ द बियर्ड एंड मुस्टैशेज इन द, स्लो रेट ऑफ द मुस्टैशेज एंड बियर्ड ग्रोथ, क्योंकि वो बियर्ड ग्रोथ और करता था. एबनॉर्मल फैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी, बिकॉज ये फीमेल का फीचर था, फीमेल फीचर. अगर फीमेल का फीचर क्यों आ रहा है आपको पता है? क्योंकि ये फीमेल में कम मात्रा में होता है. तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, हाइपोसिक्रीशन ऑफ द सेक्स कॉर्टिकॉइड मेल, यहाँ पर भी मैं कम मात्रा कर दूँ तो फीमेल वाली तो कंडीशन आ गई ना. सो ब्रॉडनिंग ऑफ द एब्डोमेन, ये भी फीमेल की कंडीशन. हाई पिच वॉइस, फीमेल कंडीशन. लेस स्किन हेयर, फीमेल के कम होते हैं. ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स, फीमेल कंडीशन. 10 फीमेल आई कैरेक्टर्स आर इंड्यूस्ड इन द मैन. दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन. इसमें आपको याद रखना है स्लो रेट ऑफ द बियर्ड एंड मुस्टैचेस, एबनॉर्मल फैट डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन द बॉडी, फीमेल
फीमेल और ये भी फीमेल, सारे फीमेल की कंडीशन, ठीक है. विद दिस वी हैव डन विद द 5th पेज एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स 6th पेज. सो gynecomastia is a condition in male in which female like characters are there. बट ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल में मेल जैसे करेक्टर हो जाए. सो उसी को गायनेकोमेस्टिया का अपोजिट होता है एड्रिनल वायरलिज्म. जब फीमेल में मेल जैसे करेक्टर आ जाए, अभी तो मेल में फीमेल जैसे आए थे ना. सो एड्रिनल वायरलिज्म देखो, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द DHEA इन सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है जो इन फीमेल इज नॉन एज एड्रिनल वायरलिज्म. सो सिम्टम ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी बियर्ड एंड मुस्टैचेस की. मतलब फीमेल आपने देखा हो, मैंने काफ़ी कम देखा है कि फीमेल की बियर्ड और मुस्टैचेस आने लग जाती है. सो देखा है मैंने. एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द स्किन हेयर, ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर्स और लो पिच वॉइस, ठीक है. ये कंडीशंस है एड्रिनल वायरलिज्म की. अगला एड्रिनल ग्लैंड इज नॉन एज 4S ग्लैंड विच इज़ नॉन एज सेक्स, शुगर, सॉल्ट और आपका हो गया स्ट्रेस. देखो सेक्स आपका हो गया DHEA, शुगर आपका हो गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सॉल्ट आपका हो गया मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, स्ट्रेस हो गया आपके इमरजेंसी हार्मोन्स विच इज कैटेकोलामाइंस, ठीक है. 4S एड्रिनल ग्लैंड इज नॉन एज 4S ग्लैंड. शुगर, सेक्स, sugar, salt, sex, stress. Sugar is glucocorticoids, salt is mineralocorticoids, sex is sex corticoids, DHEA. Stress is adrenal medulla hormones, which is catecholamines. Adrenal gland is known as 3F gland. Fight, flight or fright. 4S ग्लैंड, 3F ग्लैंड, कुछ भी बोल लो. गोनैड्स हेट्रोक्लाइन और मिक्स्ड, आप ऐसा लिख लो, मिक्स्ड भी बोलते हैं इसको. हेट्रोक्लाइन कंपाउंड या मिक्स्ड गोनैड्स की हम बात कर रहे हैं. ओवरीज एक्सोक्राइन सिक्रीशन, एक्सोक्राइन क्या होती है, विच आर थ्रू डक्ट ova from fallopian duct, fallopian tube बोल दो आप. So through ducts is exocrine and direct into the blood is estrogen. Ovaries secrete the estrogen, progesterone and relaxin. ये आप 12th में पढ़ोगे. Estrogen बताओ, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी मेरी, FSH is related with the estrogen. अगर आपको याद हो तो FSH is related with the estrogen. So estrogen maintains the uterus lining endometrium, promoting its growth during the first half of the menstrual cycle. Progesterone hormone is secreted by the corpus luteum. Corpus luteum is remnant of Graafian follicle. So it helps to maintain the uterus lining endometrium during the later phase of the menstrual cycle. So अब हम गोनैड्स की बात कर रहे हैं. हेट्रोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, बोला नहीं जा रहा, पता नहीं मेरे से क्यों. हेट्रोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड या फिर कंपाउंड ग्लैंड. सो जो हार्मोन्स भी सिक्रीट करें और कुछ और उनकी अलग से जो सिक्रीशंस तो है बट हार्मोन्स भी सिक्रीट कर रहे हैं. सो एक्सोक्राइन सिक्रीशन जो डक्ट्स के थ्रू जाती है, जैसे कि ओवा, फेलोपियन ट्यूब डक्ट ही है वो. एंडोक्राइन सिक्रीशन विच आर सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड. सो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन बेटा आप 12th क्लास में पढ़ोगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में. ईस्ट्रोजन मेंटेन्स करती है यूट्रस की लाइनिंग एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द menstrual cycle, and progesterone maintains the endometrium
during the later phase of the menstrual cycle. So with this we have done with the 6th page. So 7th page पे आ गए हम, which says progesterone is known as pregnancy hormone. Statement है आपको याद करनी है. Testis like ovaries, testis in male. Exocrine secretion which are through the ducts, we know semen. And endocrine secretion, that is hormone testosterone. Function क्या है? Male secondary sexual character, और है आपका at puberty, and it also helps in the formation of the sperm, that is spermatogenesis. सो ये कुछ मैं आपको ज़्यादा समझा नहीं सकता क्योंकि आपको शायद पता ही हो, ये बेसिक चीज़ें हैं. अब हम ये इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन एक्शन, कैसे हार्मोन काम करता है. सो हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स जो हार्मोन्स रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं ना, कुछ रिसेप्टर सेल के अंदर हो जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हो, जिसको बोलते हैं इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स हो. सो और कुछ रिसेप्टर्स सेल के बाहर हो, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स. सो कुछ हार्मोन एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड कर जाते हैं और कुछ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड कर जाते हैं. सो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कौन से हार्मोन्स हैं, जो मैंने आपको कहा था कि हम लास्ट में पढ़ेंगे. सो हम पढ़ रहे हैं. सो एक्स्ट्रा सेलुलर हार्मोन्स कैन एक्ट ईदर बाय अटैचिंग टू एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर और द इंटरसेलुलर रिसेप्टर थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर. ये हम पहला पढ़ रहे हैं. वाटर सोल्यूबल हार्मोन, ठीक है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, ग्लूकोप्रोटीन्स, ठीक है. सो आपके बचे कौन कौन से, देखो आपके बचे फैट सोल्यूबल हार्मोन. एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर से कौन से हो गए? फैट सोल्यूबल. और इंट्रासेलुलर से हो गए फैट सोल्यूबल. एक्स्ट्रा सेलुलर आपके हो गए वाटर सोल्यूबल. सो वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स आर एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर पर वाटर सोल्यूबल हार्मोन बाइंड करता है. वाटर सोल्यूबल हार्मोन के एग्जांपल्स हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन. देन पेप्टाइड्स, स्मॉल पेप्टाइड्स, लार्ज पेप्टाइड्स दोनों हो गए. प्रोटीन्स हो गए आपके, ग्लूकोप्रोटीन्स हो गए, एफएसएच एंड एरिथ्रोपोइटिन हो गए, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं. ये आपको एज स्टेटमेंट आपको याद करना है. सो विद दिस हमने 7वां पेज भी ख़त्म कर लिया. सो जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर पे जो हार्मोन बाइंड करते हैं उसको वाटर सोल्यूबल हार्मोन बोल देते हैं. वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, पेप्टाइड्स, स्मॉल पेप्टाइड, लार्ज पेप्टाइड दोनों, ग्लूकोप्रोटीन्स, और बस यही थे. सो वो ना हमेशा सेल के जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर बाइंड करेंगे जो कि वाटर सोल्यूबल है. सो वो हमेशा एक सेकेंडरी मैसेंजर इन्वॉल्व करते हैं जो कि सेल के अंदर जाता है, जो कब बनता है, जैसे एक ये सेल है, इस पे ये रिसेप्टर है, दिस इज रिसेप्टर एंड दिस इज सेल. ये आपका हार्मोन आया, हार्मोन इस पे बाइंड करेगा, इस पर अटैच करेगा, मतलब हार्मोन ऐसे आ गया, हार्मोन अटैच करेगा. देन अंदर ये आपका ना, अंदर सेल के अंदर, दिस इज योर सेकेंडरी मैसेंजर जो अंदर के काम करेगा अब, ठीक है. सो जब भी आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखनी है, आपको एक लाइन लिखवा रहा हूँ मैं. हार्मोन that act through extracellular receptor, through extracellular receptor always involves secondary messenger formed, एक गंदा लिख दिया ना मैंने, एक सेकेंड. सो मैंने टेक्स्ट से आपको स्टेटमेंट लिखवा दी. ये एक सेकेंड, मेरा ओ सॉरी,
सो मैंने आपको एक स्टेटमेंट अभी लिखवाई है, हार्मोन्स दैट एक्ट्स, मैंने टेक्स्ट से लिख दिया। सो हार्मोन दैट एक्ट थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। सो ये हो गए आपके वाटर सॉल्युबल हार्मोन, वाटर soluble always involve a secondary messenger that is formed inside, ये inside कर लेना, the cell after the formation of the hormone receptor complex। देखो जितने भी वाटर soluble हार्मोन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर साइट से बाइंड करते हैं। जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर सेल के बाहर होगा उस पर हार्मोन आया। सो हार्मोन अगर एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड कर रहे हैं तो वो वाटर सॉल्युबल है। और वाटर सॉल्युबल के एग्जांपल अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, देन आपके पेप्टाइड्स, लार्ज पेप्टाइड्स, स्मॉल पेप्टाइड्स, ग्लूकोप्रोटीन्स, ये आपके एग्जांपल्स हैं उनके, ठीक है। सो वो क्या करेंगे, जब एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। हार्मोन बाइंड कराना किस पे, रिसेप्टर पे, तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। सो मैंने वही बोला, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। सो इसके बाद जब ये बन जाता है, जब बाइंड कर जाता है, सो एक सेकेंडरी मैसेंजर आ जाता है। सो सेकेंडरी मैसेंजर बनता है सेल के अंदर बनता है वो, जो कि आगे के काम करेगा। सो आपने जैसे आप ये समझो कि वो बाहर से उसने जैसे ही टच करा सेल को तो अंदर एक मैसेज गया जिससे कुछ चीज़ बनी अंदर, जिसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी मैसेंजर। सेल के अंदर बना, जो हार्मोन अभी बाहर है, वो सेकेंडरी जो मैसेंजर है, सेकेंडरी मैसेंजर वो सेल के अंदर के सारे काम करेगा। तो एक्शन ऑफ द एड्रेनालिन, एड्रेनालिन इज अ वाटर सॉल्युबल हार्मोन। सो हम जैसे ये एड्रेनालिन आया, ये आपका एड्रेनालिन है, ये आपका रिसेप्टर है, दिस इज योर एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। और ये आपका ब्लू से जो है ये आपका सेल है, देखो एड्रेनालिन आया, ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है जिसको मैं अब डार्क कर रहा हूँ ब्लैक से। ये मैंने डार्क कर दिया। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है इस पे एड्रेनालिन आया और एड्रेनालिन बाइंड हो गया, ये रहा एड्रेनालिन, इसको मैं रेड से कर देता हूँ। ये आपका एड्रेनालिन बाइंड हो गया, ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, ये ब्लैक से जो आपका एक एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, और जो रेड है वो आपका एड्रेनालिन मॉलिक्यूल। तो अंदर कुछ अल्फा, जो इसका रिसेप्टर की जो साइड्स हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको आप छोड़ो। सो अल्फा एक तरफ से एक जैसे ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है, इससे कोई अल्फा चेन जुड़ी हुई है, और जो दूसरा रिसेप्टर है इससे बीटा प्लस गामा चेन जुड़ी हुई है, तो वो अलग अलग हो गए, बीटा प्लस गामा, तो ये अलग अलग हो गए। उसने, ये आपका सेकेंडरी मैसेंजर है, दिस इज योर सेकेंडरी मैसेंजर फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, एडिनाइल साइक्लेज। इसने क्या करा, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करा, विच इज़ योर CAMP। सॉरी बेटा, एक चीज़ मैंने आपको गलत लिख दी, दिस इज़ नॉट योर सेकेंडरी मैसेंजर। ATP जो अल्फा और बीटा प्लस गामा ने एडिनाइल साइक्लेज एक एंजाइम होता है जिसके पीछे एस आ जाता है, दिस एंजाइम, ये मैं भूल गया था, तभी मुझे याद आया कि ये सेकेंडरी मैसेंजर नहीं हो सकता। सो एनीवे, ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करा किसने, एडिनाइल साइक्लेज ने, जिसको बोलते हैं साइक्लिक AMP को बोलते हैं CAMP, साइक्लिक एडिनाइन अमीनो फॉस्फेट, विच इज़ योर सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर ने क्या करा, प्रोटीन काइनेस A एक एंजाइम है इनएक्टिव को, उसको प्रोटीन काइनेस A एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करा। उसने क्या करा, फॉस्फोराइलेज एक फॉस्फोराइलेज को, ये इनएक्टिव था, उसको फिर एक्टिव कर दिया। फॉस्फोराइलेज ये आपका एक्टिव है जो कि 10⁵ में, उसने क्या करा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना दिया। आप समझो, देखो ये आपको कहानी, ये कुछ याद नहीं करनी है आपको, दिस इज़ यूजलेस। आपको एक मैकेनिज्म, अगर आपको ब्लड वाला चैप्टर याद है तो उसमें कैस्केड मैकेनिज्म होता है। कैस्केड मैकेनिज्म क्या होता है, एक स्टेप दूसरे स्टेप पे डिपेंड करना, अगर वो स्टेप नहीं होगा तो अगले वाला स्टेप नहीं होगा। तो देखो मोटी मोटी कहानी ये आई है कि एड्रेनालिन रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, उसने कुछ अंदर जाके साइक्लिक AMP बनाया,
साइक्लिक एएमपी कैसे बना, एक एंजाइम एक्टिवेट करा एडिनाइल साइक्लेस, उसने सेल के अंदर एटीपी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी आया, एटीपी को एडिनाइल साइक्लेस ने साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करा। साइक्लिक एएमपी आपका सेकेंडरी मैसेंजर है, ठीक है। आपको नाम याद करने कौन कौन से सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। तो उसने क्या करा, उसने प्रोटीन काइनेस ए, कोई एक एंजाइम होगा, ठीक है। देखो ये स्टेप अगर साइक्लिक एएमपी ना आता तो प्रोटीन काइनेस ए जो इनएक्टिव फॉर्म है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। तो देखो साइक्लिक एएमपी पे डिपेंड कर रहा है ना वो, सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द साइक्लिक एएमपी। फॉस्फोराइलेस, उसने फॉस्फोराइलेस को फॉस्फोराइलेस एक्टिव फॉर्म में करा जो कि 10⁵ है, विच इज़ 1 लाख। सो उसने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करा, तो वो है 10⁶, विच इज़ 10 लैक्स। तो देखो आप एक बात समझ रहे हो, अगर आप ये लिख लो 1 एड्रेनालिन मॉलिक्यूल, देखो ये था ना एड्रेनालिन का, एड्रेनालिन मॉलिक्यूल ने कितने कर दिए 10 अरे यार ये देखो, अगर आप ये देख रहे हो तो 10⁶ लिखा हुआ है। 1 एड्रेनल मॉलिक्यूल एक्टिवेट 10⁶ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि हार्मोन्स हमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते, कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। क्योंकि वो कैस्केड मैकेनिज्म शो करते हैं, मतलब एक ही बहुत चीज़ें बना देता है, तभी तो कम चाहिए ना। कम इसलिए चाहिए क्योंकि एक ही बहुत ज़्यादा बना देते हैं, तो हमें ज़्यादा चाहिए ही क्यों, मतलब ज़्यादा हार्मोन चाहिए क्यों, जब एक हार्मोन का मॉलिक्यूल इतना ज़्यादा ग्लूकोज बना रहा है, मतलब जो भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इतना ज़्यादा कर रहा है, तो हमें ज़्यादा हार्मोन क्यों चाहिए। सो दिस इज़ the process. The hormone that act through the extracellular receptor always involve the secondary messenger, बेटा वही लाइन लिखिए, formed inside the cell after the formation of the hormone receptor complex। सेम लाइन ऊपर वाली, ये लाइन छाप लो। मुझे नहीं पता था कि आगे लिखी जा रही है, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं कि पहले रट के आता हूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ, आपके सामने ही खोल के बैठा हूँ नोट्स। दिस सेकेंडरी मैसेंजर देन मीडिएट्स ऑल द एक्शन इनसाइड द सेल। इस सेकेंडरी मैसेंजर देखो आपका ये था सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी, दिस इज योर सेकेंडरी मैसेंजर। इसने ही तो सारे काम करे ना आगे सेल के। सो दिस सेकेंडरी मैसेंजर देन मीडिएट्स ऑल द एक्शन इनसाइड द सेल। एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी मैसेंजर देखो, सीएएमपी आ गया, ये जो हमने पढ़ा है, ये रहा आपका सीएएमपी, ये रहा। सो ये क्या था, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, आपका एड्रेनलिन के केस में आ गया और नॉर एड्रेनलिन के केस में आ गया। फिर आपका आता है IP3 या PIP2। सो IP3 इज आयोडीन ट्राइफॉस्फेट और PIP2 इज फॉस्फो आइनोसिटोल बिसफॉस्फेट, सो बाइफॉस्फेट। सो आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ये ट्राई है बाई नहीं है, ट्राइफॉस्फेट। एंड PIP2 इज फॉस्फो आइनोसिटोल बाइफॉस्फेट। ये आपका आ गया इंसुलिन का। इंसुलिन जब भी आता है तो जब देखो इंसुलिन भी वाटर सॉल्युबल है, इंसुलिन भी वाटर सॉल्युबल है, तो जब इंसुलिन आएगा तो कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर आएगा, तो आएगा IP3 और PIP2। आप समझ रहे हो, ये आएगा इंसुलिन के केस में। सो विद दिस हमने 8th पेज भी कंप्लीट कर लिया, अब हम 9th पेज की तरफ मूव करते हैं। सो कुछ और हम 9th पेज पर आगे कुछ और सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जाम्पल, सेकेंडरी मैसेंजर और वो कब कौन से उसमें आते हैं। सो DAG डाई अराइल ग्लिसरॉल, ये आपका आता है इंसुलिन में। देन CA2+ आयन आता है आपका इंसुलिन में फिर से। और आपका CGMP साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये आपका आता है असीटाइल कोलिन में। असीटाइल कोलिन आपका न्यूरो हार्मोन है, आपको पता होगा न्यूरो हार्मोन, ठीक है। सो कैस्केड इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं अब, कैस्केड इफेक्ट जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, फटाफट मैंने आपको बता दिया था, तो अब हम उसकी रिटर्न पढ़ लेते हैं। द हार्मोनल एक्शन थ्रू एक्स्ट्रा सेलर रिसेप्टर शोज कैस्केड इफेक्ट, मैंने आपको बता दिया। दैट इज़ वन स्टेप इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स प्रायर स्टेप, जो अगला स्टेप है वो उससे पहले वाले स्टेप पे डिपेंड करता है। इफ़ एनी ऑफ दिस एंजाइम इन्वॉल्व इन द हार्मोन एक्शन इज ब्लॉक्ड, अगर मैंने कहा था कोई भी स्टेप अगर ब्लॉक हो जाता है तो आगे कैस्केड मैकेनिज्म नहीं होगा। द कैस्केड इफेक्ट फेल्स एंड द हार्मोन एक्शन इज नॉट प्रोसीडेड, नहीं आता है बेटा प्रोसीड, एक सेकेंड, इज नॉट
प्रोसीड, ठीक है। द हार्मोनल एक्शन दैट एक्ट्स थ्रू द extracellular receptor shows the cascade effect. One step is dependent upon its prior step. Thus, if any of the enzyme involved in the hormonal action is blocked, then the cascade effect fails and the hormone action is not proceed. देखो, अगर एड्रेनलिन जब आया था उसने अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ने एडिनाइल साइक्लिक एक एंजाइम बनाया था। एडिनाइल साइक्लेस अगर ना होता, एडिनाइल साइक्लेस ना होता तो क्या एटीपी साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट होता? उसने ही तो कराया था ना। तो सोचो, देखो एटीपी साइक्लिक एमपी में कैसे कन्वर्ट हुआ? एडिनाइल साइक्लेस ने कराया, ठीक है। और एटीपी से साइक्लिक एमपी जब कन्वर्ट हो तो उसने आगे प्रोटीन काइनेस ए से इनएक्टिव से प्रोटीन काइनेस ए एक्टिव बनाया। सो अगर सी ए एम पी दैट इज साइक्लिक एम पी ना होता तो क्या प्रोटीन काइनेस ए इनएक्टिव से एक्टिव बनता? नहीं बनता। तो देखो, जितने भी स्टेप हैं वो उससे पहले वाले स्टेप पे डिपेंड कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कास्केड इफेक्ट। एम्पलीफिकेशन ऑफ द सिग्नल, ये भी आपको बता चुका हूँ मैं। आप देखो, अगर आप इसको पढ़ लो, वन मॉलिक्यूल ऑफ एड्रेनलिन कॉजेज द एक्टिवेशन ऑफ द मैनी मॉलिक्यूल ऑफ द CMP विच इन टर्न एक्टिवेट्स द हायर मॉलिक्यूल ऑफ द higher number of the protein kinase enzyme. Finally, 10⁻⁶ glucose molecule are released from the one cell by the action of the one adrenaline molecule. Thus, hormones are required in the small quantity as they show amplification of the signal. बेटा इंग्लिश लिखी हुई है, मैंने आपको हिंदी समझा चुका हूँ। तभी मैंने बताया था ना हॉर्मोन्स क्यों कम मात्रा में चाहिए होते हैं, और जो आपके हॉर्मोन्स हैं वो क्यों कम मात्रा में चाहिए होते हैं। सो इसलिए कम मात्रा में चाहिए होते हैं क्योंकि वो एम्पलीफिकेशन ऑफ द सिग्नल करते हैं, ठीक है। एक एड्रेनलिन, देखो एक एड्रेनलिन का मॉलिक्यूल 10⁻⁶ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, यार एक तो यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ी बुरी राइटिंग लिखता हूँ। देखो, एक एड्रेनलिन का मॉलिक्यूल 10⁻⁶ एड्रेनलिन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देता है। तो जब एक ही मॉलिक्यूल इतना ज़्यादा कर रहा है तो हमें हार्मोन चाहिए ही क्यों? इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल नहीं चाहिए। सो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, बेटा ये भी पढ़ा चुका हूँ मैंने आपको, शुरू में ही सब कुछ पढ़ा दिया था। जो मैंने आपको कहा था, मैंने आपको शुरू में कहा था कि सब चीज़ें आगे आएंगी, बट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, हार्मोन जो अपोजिट काम करते हैं, हार्मोन शोइंग अपोजिट एक्शन। इंसुलिन ग्लूकागॉन, एक कम करता है ग्लूकोज का लेवल, एक बढ़ाता है। थायरोकैल्सिटोनिन, ये जब कैल्शियम का लेवल बड़ा होता है तब आता है। पैराथॉर्मोन, जब कैल्शियम का लेवल कम होता है तब आता है। सो एड्रेनलिन और एसिटाइलकोलिन, ये आपको बेटा 21 चैप्टर में, ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ लिया होगा। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, हार्मोन जब जो सिमिलर इफेक्ट दिखाते हैं। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन हेल्प्स इन द मिल्क प्रोडक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मानूंगा मैं कि मैं सिर्फ ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन को मानूंगा, मैं ये मानता हूँ, बट यहाँ लिखा हुआ है तो आप मान लेना। बट मैं नहीं मानता कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मिल्क प्रोडक्शन में कैसे हेल्प कर सकते हैं। शायद करते भी हो, मुझे ना पता हो, मैंने गलत पढ़ रखा हो, या फिर मैंने प्रॉपर ना पढ़ रखा हो। बट मुझे लगता नहीं कि मैंने कम पढ़ रखा है, मैंने पढ़ रखा है सब कुछ। बट ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन आर हेल्प इन द मिल्क प्रोडक्शन। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हम कह सकते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करते हैं। देखो, प्रोजेस्टेरॉन इज़ नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन, और प्रेगनेंसी में आपके मेमरी ग्लैंड का साइज़ बढ़ता है, और मेमरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन उसमें, प्रोलैक्टिन उसमें मिल्क सिंथेसिस ऑफ मिल्क करता है, और ऑक्सीटोसिन आपका मिल्क इजेक्शन करता है। सो कह सकते हैं, बट ईस्ट्रोजन नहीं। चलो फिर भी ठीक है, आप याद कर लेना, मैम ने लिखवाया है तो। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन हेल्प्स इन द मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क इजेक्शन इन द मेमरी ग्लैंड्स। बट मेरा मानना अभी भी मैं ये मानूंगा सिर्फ ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन को आप कंसीडर करना, बाकी मैं आपको कंफर्म करके अपडेट कर दूंगा। हेल्प्स इन द मिल्क प्रोडक्शन एंड द मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन में ठीक है, मिल्क इजेक्शन में ये दोनों हैं, बट मिल्क प्रोडक्शन में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन से कह सकते हैं, कुछ भी कहा जा सकता है, बायो है, कैसी भी जस्टिफिकेशन दे दो। अगर जैसे नीट है, काफ़ी कितनी बार गलत आंसर दे देता है, बट जस्टिफिकेशन कुछ भी बक देता है, बायो है कह सकते हैं। चलो ये पेज भी ख़त्म होता है, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। सो हमने हार्मोन्स वो पढ़ लिए जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड करते थे, अब हम हार्मोन्स वो पढ़ रहे हैं जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं। तो अगर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है तो सेल के अंदर है, तो हार्मोन सेल के अंदर जा सकता है, तो और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। तो हम वही पढ़ रहे हैं कि
hormones through the intercellular receptor. So hormones that act by the intercellular receptor can enter the cell. ये तो obvious बात है, अगर intercellular receptor है तो cell के अंदर ही होगा. Can enter inside the cell due to their high lipid solubility. हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है. सो सॉल्युबल है, अगर लिपिड सॉल्युबल है तो अंदर जा सकता है सेल के. दीज हार्मोन्स क्या करते हैं, देखो सेल के अंदर जाएंगे और ना, देखो जीन समझते हो आप, 12th में मॉलिकुलर इनहेरिटेंस वाला एक चैप्टर है और प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन वाला चैप्टर है. मॉलिकुलर इनहेरिटेंस में आता है, जीन अगर चेंज हो जाता है, अगर जीन की कोडिंग चेंज हो जाती है तो जीन mRNA बनाता है. mRNA से प्रोटीन बनता है, मतलब राइबोसोम, और राइबोसोम से प्रोटीन. तो अगर मैं जीन एक्सप्रेशन चेंज कर दूं, जो जीन कुछ और बना रहा था, अब मैं उसमें कुछ ऑल्टर कर दूं, कुछ चेंज कर दूं, मैं कुछ सीक्वेंस चेंज कर दूं, जीन सीक्वेंस चेंज कर दूं, जीन में कुछ ऑल्टर कर दूं, में कुछ कोडिंग अलग कर दूं, जिस वजह से आपका mRNA दूसरा बना. और देखो जीन से जब mRNA बनता है ना तो उसको बोलते हैं मतलब चलो आप ऐसे सोचो, जीन से mRNA ट्रांसक्राइबिंग द mRNA, देन mRNA से राइबोसोम, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन. प्रोटीन को ट्रांसलेशन बोलते हैं, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन इज ट्रांसलेशन. सो ये क्या करते हैं, ये जो हार्मोन होते हैं, जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं, ये जीन एक्सप्रेशन चेंज कर देते हैं, सेल के अंदर जाते हैं और सीक्वेंस चेंज कर देते हैं. किस चीज़ की सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, mRNA बनाने वाली सीक्वेंस चेंज कर देते हैं. अगर mRNA बनाने वाली सीक्वेंस चेंज हो जाएगी तो mRNA दूसरा बनेगा, और दूसरा अगर mRNA बनेगा तो प्रोटीन दूसरे बनेंगे. ठीक है, तो वही लिखा है, दीज हार्मोन बाइंड टू द इंटरसेलुलर रिसेप्टर सेल के अंदर होंगे एंड ऑल्टर द क्रोमोसोम फंक्शन. क्रोमोसोम की सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे ना, उसके फंक्शन को ऑल्टर करता है. और जीन एक्सप्रेशन, दस ट्रांसक्राइबिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू mRNA. पहले कोई और सा mRNA बन रहा था, अब कोई और mRNA बन रहा है, विच स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्रोटीन. अब पहले कोई और प्रोटीन, अगर कोई और mRNA बनेगा तो उससे मान लो उससे कोई X प्रोटीन बन रहा है, अब कोई और mRNA बन रहा है तो उससे Y प्रोटीन बन रहा है. सो विच स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्रोटीन इन द सेल. Lipid soluble hormone act by this mechanism, or you can say iodinated form of amino acid, steroidal hormone or lipid soluble. Iodinated form of amino acid, steroidal और आपका लिपिड. ठीक है, ये तीन आपको याद रखने हैं. देखो हार्मोन आया, ये आपका हार्मोन है, सेल के अंदर घुसा, लिपिड सॉल्युबल है, सेल के अंदर घुसा, ये आपके क्रोमोसोम है, ये आपका क्रोमोसोम, दिस इज मार्क कर लो, ये आपका क्रोमोसोम. रिसेप्टर है, देखो सेल के बाहर रिसेप्टर है, सेल के अंदर रिसेप्टर है, इंटरसेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड करा, इसने क्या करा, क्रोमोसोम के फंक्शन को ऑल्टर करा. ये आपका इसने नया mRNA, ये आपका नया mRNA बना, उसने सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करी, राइबोसोम, पहले उसने प्रोटीन, राइबोसोम बने और राइबोसोम से प्रोटीन बना. सो मैकेनिज्म ऑफ इंटरसेलुलर एक्शन क्या होता है, देखो कोई सेकेंडरी मैसेंजर इज नॉट इन्वॉल्व्ड. अगर आपको ना भी समझ आए तो कोई नहीं पूछ रहा आपसे, कोई एक्सप्लेन करो. आपको क्या याद रखना है, सेकेंडरी मैसेंजर इज नॉट इन्वॉल्व्ड, ये आपको याद रखना है. और दे ऑल्टर द जीन एक्सप्रेशन, आपको ये याद रखना है. एग्जाम्पल क्या रखने हैं इसको आपको याद, स्टेरॉयडल हार्मोन और आपके लिपिड सॉल्युबल हार्मोन और आपके आयोडीनेटेड फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड. देखो hormones that act through the intracellular receptor can enter the cell due to the high lipid solubility. Plasma membrane lipid content है. So hormone that act through the intracellular receptor can enter the cell due to their high lipid solubility. They alter the chromosome function or the gene expression, thus transcribing the new mRNA formation and hence the formation of the new proteins.
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. सेकेंडरी मैसेंजर इज़ नॉट इन्वॉल्व. सेकेंडरी मैसेंजर इज़ नॉट इन्वॉल्व. दे ऑल्टर द जीन एक्सप्रेशन. एग्जाम्पल स्टेरॉयडल हार्मोन, जितने भी लिपिड सॉल्युबल है. विद दिस हमने ये पेज भी ख़त्म कर लिया. अब हमारा सिर्फ लास्ट पेज बचा है इस चैप्टर का. सो ये एडिशनल पॉइंट है. चैप्टर इज़ फिनिश नाउ. सो एडिशनल पॉइंट्स कुछ हैं. सो जो पैनक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं, अगर हमें उसको डिस्ट्रॉय करना हो तो हम एक केमिकल आता है एलोक्सिन. सो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास इज़ डिस्ट्रॉयड बाय एलोक्सिन टू इंड्यूस डायबिटीज़ मेलाइटस. अब आप कहोगे कि हमें क्यों डिस्ट्रॉय करें. मान लो कि जैसे किसी में डायबिटीज़ इंड्यूस करानी है तो बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा एलोक्सिन बनाने के लिए. अब आप कहोगे कि डायबिटीज़ क्यों इंड्यूस करानी, तो कभी भी आप सोचो कि अगर इंसुलिन की दवाई बन रही हो, अगर हमें इंसुलिन चेक करना हो तो हमें पहले बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ना. आप समझ रहे हो. बीटा सेल से आपको इंसुलिन आता है. बीटा सेल से आपका इंसुलिन आता है. अगर आप बीटा सेल डिस्ट्रॉय कर दोगे आपका इंसुलिन नहीं आ पाएगा. तो इसी प्रकार अल्फा सेल्स ऑफ द पैनक्रियास, ये वैसे अगर आप ना समझो तो ये आपको सिर्फ स्टार भी क्यों कर रहा हूँ मैं, मत करो, आप छोड़ सकते हो. आप सिर्फ ऐसे ही मज़े के लिए पढ़ लो. अल्फा सेल्स ऑफ द पैनक्रियास डिस्ट्रॉयड बाय कोबाल्ट क्लोराइड. टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कुछ समय के लिए एंडोक्राइन होते हैं. प्लेसेंटा, रिप्रोडक्शन में आप पढ़ोगे. प्लेसेंटा रिलैक्सिन कुछ एक हार्मोन है, एचसीजी रिलीज़ करता है. ह्यूमन ओरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ये एक हार्मोन है, एचसीजी रिलीज़ करता है प्लेसेंटा. देन आपका कॉर्पस ल्यूटियम, द रेमिनेंट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल, ये आपका प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करता है, हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड लो अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन. एंड ग्राफिन फॉलिकल आपका हार्मोन रिलीज़ करता है. फिरोमोन्स क्या होते हैं, आप कुछ इंसेक्ट ना अपने सरफेस पे कुछ केमिकल्स छोड़ दें जिससे दूसरे एनिमल, उसी स्पीशीज़ के दूसरे एनिमल अट्रैक्ट हो जाएं उसी स्पीशीज़ के दूसरे एनिमल अट्रैक्ट हो जाएं फॉर ब्रीडिंग. सो कुछ एनिमल्स छोड़ते हैं. तो कभी आप ना, ये आपको एक फ़न फैक्ट बताता हूँ, कभी ना चींटियों का झुंड जा रहा हो, जब चींटी एक लाइन बाय लाइन चलती है ना, तो आप बीच में से ऐसे कर देना, जैसे आप दीवार पे जा रही हैं तो बीच में से दीवार ऐसे ऐसे रब कर देना. तो आप देखना कि चींटियाँ हैं ना, वो अपना रास्ता भटक जाएंगी. एक चींटी, ये आपकी चींटी है और ये दूसरी चींटी है, आप बीच में से रब कर देना तो ना चींटी ना फेरोमोन्स रिलीज़ करते करते जाते हैं, जिसको दूसरी चींटी सूंघती है और उसको पता चलता है यहाँ रास्ता जाना है. तो आप जब रब कर दोगे ना तो अपना रास्ता भटक जाएंगी. देखना, तो ये इधर चली जाएगी, ये अपना अलग जाएगी, और इसके पीछे जो चींटी होगी उसका भी आप रब कर दोगे तो वो कुछ इस तरफ से कहीं भी जाएगी, बट वो सीधी लाइन फॉलो नहीं करेगी. तो आप ये करके देख लेना. सो केमिकल सिक्रेटेड बाय द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स by some organism on the surface of the skin to attract the opposite sex for breeding. So ठीक है, कुछ अपने सरफेस पे कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं ब्रीडिंग के लिए. सो कुछ एनिमल सिक्रीट करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड. तो विद दिस हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. और ये पहला चैप्टर है जो मैंने पूरा कंप्लीट करा है, नीट और एम्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से. कोई भी आपका क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ इस बात की, क्योंकि मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो एम्स का हो चाहे वो नीट का हो. कैसे, मैं इसके बाद आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा. आपका ये चैप्टर ख़त्म 5 वीडियोस, मैंने आपको बोला था 7 वीडियोस में ख़त्म करूंगा, बट मैंने 5 वीडियो में ख़त्म करा है चैप्टर. सो इसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको 45 क्वेश्चंस दूंगा सेल्फ मेड, जो मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस होंगे. और वो क्वेश्चन आप यकीन करो काफ़ी स्टैंडर्ड होंगे, काफ़ी आपका दिमाग लगेगा उस क्वेश्चंस में. सो अगर आप वो 45 कर लेते हो तो आप मान के चलना कि आपने नोट्स ढंग से पढ़े हैं, ये जो मैंने आपको नोट्स कराए हैं. ऑल्सो अगर आप ये नोट्स कॉपी करते हो तो मैं आपका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि जिससे आप PDF से डाउनलोड कर पाओगे. सो और 45 क्वेश्चंस, तो ये अगर आप यकीन नहीं है तो मेरे क्वेश्चंस पे यकीन नहीं है, कोई बात नहीं. आप जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो तो ऑथेंटिक क्वेश्चंस है ना, तो मैं आपकी 28 ईयर्स के जो क्वेश्चंस, 30 ईयर्स, जो भी 30 ईयर आती है, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे. 30 ईयर से हम क्वेश्चंस कर लेंगे. वैसे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना प्रीवियस 10 ईयर ही करना चाहिए, क्योंकि बिफोर 2008 देयर आर सम कॉन्सेप्ट विच आर नॉट टॉट टुडे. मतलब आजकल नहीं पढ़ाया जाता वो
वो कॉन्सेप्ट था जो 2008 से पहले पढ़ाया जाता था, तब एनसीईआरटी डिफरेंट थी, कुछ चीज़ें ज़्यादा थी उसमें। बट आप मेजर आपको क्या याद रखना है, अगर आपसे 2008 के बाद वाले क्वेश्चंस अगर आपसे हो जाते हैं तो आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। नीट और एम्स के दोनों के क्वेश्चंस कर लेंगे हम। सो विद दिस विनायक इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल सीरीज़। मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस पे, और मैं 1 बजे शुरू करी थी, अब 4:50 हो रहे हैं। अगर आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ 1.5-2 घंटे की वीडियो है, बट इसमें काफ़ी रीटेक लगते हैं, काफ़ी अगर कुछ एरर ना आ जाए, कुछ पीडीएफ डाउनलोड करने पड़ते हैं, फ़ोटो खींचो, फिर मतलब पीसी में डालो, देन उसको पीएनजी में कन्वर्ट करो, फिर एडिटिंग करो, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। सो प्लीज़ अप्रिशिएट माई वर्क, एंड बिकॉज आई नो बिकॉज हार्ड वर्क काफ़ी लगता है इस पर। So thank you for watching my channel. Hope you like it. And the situation of COVID, stay home, stay healthy, and stay fit. My next series probably will be on the digestion and absorption and or breathing, या फिर आपका ब्लड वाला चैप्टर है। जो ब्लड वाला चैप्टर कौन सा है, 18th चैप्टर। तो इन तीनों में से किसी पे एक आएगी, पूरी ख़त्म करूँगा। और आप यकीन करो, इसके बाद मैं आपको पहले 28 ईयर करूँगा, ताकि आप मतलब 10 ईयर करूँगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं वो ऑथेंटिक है, स्टैंडर्ड है और अच्छे कोचिंग के हैं। और उसके बाद मैं आपको 45 क्वेश्चंस करूँगा, वो आपको टेस्ट करेंगे कि मैं इतना ऐसे डिज़ाइन करूँगा 45 क्वेश्चन कि ऐसे मतलब आपको डीप आपने ढंग से पढ़ा होगा ये तो हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि नहीं हो पाएंगे। मैं कोई ऐसा तो सुपर ह्यूमन तो हूँ नहीं कि आपको ऐसे क्वेश्चन बना दूंगा कि जिससे होएगा ही नहीं। होएंगे सारे क्वेश्चन, सारे नोट्स होंगे, बट थोड़े कॉम्प्लिकेट करके दूंगा मैं। अगर आप ट्राई करना, वो करना, मज़ा आएगा आपको करने के बाद। सो ये चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर।